Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject History and Civics, chapter number 4, lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. ओके, नाउ कम टू एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 46. एक्सरसाइज, fill in the blanks. Number 1. The era of the Shang and major period of Zhou dynasty is generally known as Bronze Age in China. So Shang और major period जो है Zhou dynasty, उस टाइम को क्या बोलते थे लोग? Bronze Age. Second, sericulture और silk production forms an important part of the Chinese tradition. Sericulture और silk production जो है वो Chinese tradition का important part है. थर्ड, द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो प्रैक्टिस एंसेस्टर वर्शिप. वो लोग पूर्वजों का पूजन भी करते हैं. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज राइटिंग वर द ऑरिकल बोन्स इंस्क्रिप्शन. बोन्स से वो लोग लिखते थे. द चाइनीज कैलेंडर कंसिस्टेंट ऑफ 12 मंथ्स. चाइनीज कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. सेकेंड, state whether the following statements are true or false. The Great Wall of China was declared a World Heritage Site by UNESCO. True. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर रखा है उसका नेम यूनेस्को ने. द फेमस एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल एंशियंट चाइनीज आर्किटेक्चर वॉज द पिरामिड. नो, पिरामिड इजिप्शियन का है, चाइनीज नहीं है. फॉल्स. प्रेजेंट डे चाइना इज अ वास्ट कंट्री विद द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. चाइना वास्ट कंट्री है. पैसिफिक ओशन कहाँ पर आता है इसके? ईस्ट में. ट्रू. Under the Shang dynasty, a vast irrigation system developed so that there was a surplus of food grains, है ना. Shang dynasty का जो irrigation system था बहुत fast था. False, नहीं था. During the early years of Chinese civilization, people worshipped the high god Di Shangdi. उस टाइम people किनकी worship करते थे? God Di की, Shangdi. True. Number 3, match the following items given in column 1 with those column 2. Number 1, pagoda. C, temple. 2, porcelain. E, pottery. 3, Bronze Age. A, Shang and Zhou dynasties. 4, Xiao. B, musical instruments. 5, the Great Wall of China. D, World Heritage Site. Next, question number 4. Give one word of the following. The dynasty which exercised imperial power over most of the central China. Central China में किनकी पावर थी? Zhou dynasty. Art of silkworm breeding. Silkworm breeding के आर्ट को क्या बोलते थे? Sericulture. Chinese inscription found on animal bones. Animal bones से जो लिखे रहते थे उन्हें क्या बोलते हैं? Oracle bones. An ancient Chinese philosopher other than Confucius. Confucius के अलावा एक और कौन था Chinese philosopher? Laozi. The world's longest human made structure कौन सा है? The Great Wall of China. Complete your work. Page number 47.
Study the picture given on the next page. Answer the question that follow. Number one, the picture depicts a famous Chinese invention often used by sailor to navigate sea. Sea को navigate, sea जब वो लोग वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर नेविगेट करने के लिए उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है? इस इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है. नंबर वन, आइडेंटिफाई द इन्वेंशन. लेडन एंड बाउ टाइप कंपास, ये एक तरह का कंपास है. पी, वॉट इट यूज फॉर, ये क्या यूज़ है इसका? टू फाइंड डायरेक्शन वाइल एट सी, जब सी के अंदर, पानी के अंदर होते तो डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता. थर्ड, इन वॉट वेज डिड दिस इन्वेंशन ब्रिंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर, लोगों को आसपास पास लाने के लिए ये इन्वेंशन किया गया था कि ताकि हम सी ट्रैवल थोड़ा ईजी हो जाए. इट एनकरेजेस सी ट्रैवल विच हेल्प टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. बेसिकली सी ट्रैवल, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर होते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है ना, तो उसके लिए कंपास बनाया जिससे हमें डायरेक्शन पता पड़े. लाइक अगर मुझे सपोज चाइना के नॉर्थ में इंडिया है ना, सपोज, ठीक है, तो हम नॉर्थ साइड जाएंगे अगर सी के अंदर तो इंडिया आएगा. इस तरीके से डायरेक्शन पता करने के लिए ये कंपास यूज़ में लेते हैं. Chapter 4, Ancient River Valley Civilization, China. Now we complete our question answers. Answer the question in brief. Number 1, describe the social life in ancient China. China की क्या social life रहती थी? Answer, the head of the society was the emperor. Who is the head? King जो है वहाँ का head रहता. Under the emperor were nobles, merchant, craft person, farmers and slaves. उसके बाद क्या इनका रहता था? ग्रेड्स. नॉबल्स आएंगे, नॉबल्स के बाद मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के बाद क्राफ्ट पर्सन के बाद फार्मर्स, फार्मर्स के बाद स्लेव्स. सेकेंड, व्हाट वर द रिलीजियन बिलीव्स ऑफ अर्ली चाइना. अर्ली चाइनीज जो थे उनका रिलीजियन बिलीव्स क्या था, वो किन में बिलीव करते हैं? आंसर, द चाइनीज वर्शिप शेंगडी who they believed was responsible for rain, wind and thunder. बेसिकली जो नेचर जो प्रोवाइड करता है, नेचर को वो गॉड मानते हैं, है ना. जैसे रेन है वो नेचर से मिल रही है, विंड है वो नेचर से मिल रही है, थंडर है वो नेचर से मिल रही है, तो उन्हें वो अपना गॉड मानते हैं. Why did the Chinese ruler build the Great Wall? ग्रेट वॉल क्यों बनाया उन्होंने? The Chinese ruler constructed the Great Wall to protect the country against invaders. जो दूसरे जो आक्रमण करने दूसरी कंट्रीज़ के लोग आते हैं उनसे बचाने के लिए उन्होंने ग्रेट वॉल चाइना बनाई. व्हाट डिड द एंशियंट चाइनीज यूज टू मेक पेपर. पेपर बनाने के लिए वो क्या यूज़ में लेते हैं? द पेपर इन चाइना वॉज क्रिएटेड फ्रॉम मलबरी एंड अदर फाइबर्स, फिश नेट्स, ओल रैक्स एंड हैम्स. किन किन चीज़ों से बनाते थे? मलबरी से बनाते थे, फाइबर से बनाते थे, फिश नेट से बनाते थे, रैक से बनाते थे, हेम्प फेस से बनाते हैं. इन कुछ चीज़ों से वो लोग पेपर बनाते हैं. नंबर 5, मेंशन एनी टू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन. चाइनीज सिविलाइजेशन ने कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या इन्वेंशन किए वो बताना है. आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. वुड पे ऐसे कार्विंग की जाती है, फिर उसको इंक में डिप करके फैब्रिक पे या कहीं भी लगाया जाता है, वॉल पे कहीं भी. दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग. सेकेंड, प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर एंड हर्बल मेडिसिन. एक्यूपंक्चर जो एक्यूप्रेशर होता है, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में जिन्हें हम प्रेस करने से हमारी कोई भी डिजीज़ को क्योर करते हैं. और हर्बल मेडिसिन होती है आयुर्वेद, तो एक आयुर्वेदिक होता है, एक हर्बल होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना. तो हमारे यहाँ ग्रीन टी सिर्फ एक वैरायटी की, वहाँ पर ग्रीन टी आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी वैराइटीज़ की मिलेगी. ओके, सो कंप्लीट योर वर्क.
and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। डेली 9 बजे से पहले आपको अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।